Hi, good afternoon, everyone. I'm sorry for keeping you waiting. I had a call. Good afternoon. Just raise your hands if you can hear me. Good afternoon, Priya, Jessica, Meet, Srishti, Shweta. Good afternoon, Prableen. Good afternoon, Pranav. Good afternoon, Arshdeep. Good afternoon, Jia. Jia, are you going to take IPM or DU's exam? Good afternoon, Isha. BB entrances. Jia, are you there? Okay, fine, fine, fine. You need maths for DU. I mean, you should have had maths in class 11th and 12th. If you had maths, then it's fine. Okay, so the topic that we have to do today is binomial theorem. But before I get into binomial, where does this binomial take its name from? Not important for law, Gia. Not at all required for law. Where does binomial take its name from? The chapter's name is binomial expansion, basically. Okay. Where does this chapter take its name from? Binomial. Arshdeep, not many terms. What does bi signify? Two terms, yes. Two terms, not 2 degree, probably. 2 degrees different. Yes, yeah, it's fine. It's two terms. It's the expansion of two terms. Expansion of two terms, okay? So what do I actually mean by this? All of you are aware of this formula, right? X plus y whole square. How do we expand this? What is the expansion of this formula? Everyone knows this. What is the expansion? What is the expansion of this? Yes. The proper expansion is x square plus 2xy plus y square. Okay. Similarly, what is the expansion of x plus y whole cube? X plus y whole cube. X cube plus 3x square y plus 3xy square plus y cube. Yes. Okay. I hope everyone knows these expansions. But what is there beyond this? What if I have x plus y whole raised to power, sorry, 4. Let's say I have x plus y raised to power 4. What is going to be the expansion? Or x plus y raised to power 5. What is going to be the expansion? Or x plus y raised to power 6, what is going to be the expansion? 7, what is going to be the expansion, and so on. Okay, understood? Now, uh, before I talk about expansion, what is this actually? It's like there are two things
which are being distributed to two people, X and Y. Okay. There are multiple ways to do that. What are the multiple ways? X gets both of those, two of those. X gets 1, Y gets 1, Y gets 2. ऐसे ही होगा ना? मैं अगर तुम्हें एक क्वेश्चन ये देता कि you have two chocolates to be distributed to two people, X and Y, in how many ways can you do that? You can say X gets 2 chocolates, Y gets 0, X gets 1 chocolate, Y gets 1, X gets 0 chocolate, Y gets 2. है ना? यही तरीके बनते हैं, isn't it? Correct, Anuj. Yes, that's the correct expansion. Correct. तो यही हो रहा है ना, तो यही हम कर रहे हैं, ये बाकी जगह भी यही हो रहा है कि मेरे पास 3 चॉकलेट्स हैं, एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कैसे कर सकता हूँ? एक्स को तीनों दे दो, वाई को 0 दे दो, एक्स को 2 दे दो, वाई को 1 दे दो, एक्स को 1 दे दो, वाई को 2 दे दो, और इसको 0 दो, इसको 3 दे दो, है ना? यही एक्सपेंशन है। और आइडियली इफ यू लुक एट द पावर्स, यही हो रहा है, पहले 2, फिर 1 1, फिर वाई को 2। एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज वाई रेस्ट पर 0 हियर, देयर इज एक्स रेस्ट पर 0 हियर। डू यू अंडरस्टैंड? सबको क्लियर हो रहा है ये? इट्स लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग, ऊपर जो भी n लिखा है, n नंबर ऑफ आइटम्स इन दीज टू पीपल, ओके? And to distribute n number of items to let's say whatever number of r number of people, okay, या 2 number of people here, as जैसे इस केस में 2 लोग हैं, you might have observed कि जब 3 आइटम, मतलब कि 3 पावर थी, we had 4 terms. जब 2 पावर थी, ये 2 पावर थी मेरी, we had 3 terms, 3 तरीके. When the power was 3, we had 4 different terms. ऐसे ही when the power is 4, we will have 5 different terms. 5 different terms. ठीक है? और 5 टर्म्स होनी कैसे वाली हैं? तुमने अब तक ऑब्जर्व कर लिया होगा कि 4 चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है 4 लोगों में, पहले चारों की चारों एक्स को दे दो, वाई को कोई भी नहीं, फिर एक्स को 3 दे दो, वाई को दे दो 1, एक्स को 2 दो, वाई को 2 दो, एक्स को 1 दे दो, वाई को 3 दे दो, एक्स को कोई भी नहीं और वाई को 4 दे दो, है ना? ये 5 टर्म ही बनने वाले हैं. डू यू अंडरस्टैंड? देयर आर गोइंग टू बी 5 टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेंशन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब समस्या है कि इनके आगे कोफिशिएंट क्या आएंगे. जैसे यहाँ कोफिशिएंट 1 3 3 1 लगा है ना? इनके आगे कोफिशिएंट क्या आएंगे? इनके आगे कोफिशिएंट क्या आएंगे? ठीक है ना? बेसिकली इनके आगे जो भी कोफिशिएंट आएगा वो हम डिफाइन करते हैं विद द फॉर्मूला, विद द कॉम्बिनेशन फॉर्मूला. चलो मैं कॉम्बिनेशन फॉर्मूला पे आता हूँ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं अभी. ओके, एंड वो भी क्यों फॉर्मूला यूज होता है वो भी मैं तुम्हारे साथ अभी डिस्कस करता हूँ. ओके, ये जो आगे एक्सपेंशन में इनके आगे, जैसे तुमने a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन किया था ये ऊपर, तो इसमें तुमने देखा, तुमने कॉफिशिएंट्स तुम्हारे 1 2 एंड 1 है. समझ रहे हो? 1 2 एंड 1. अगर तुम x प्लस वाई रेस्ट पर 1 की एक्सपेंशन करो तो वो x प्लस वाई ही है. इनके कॉफिशिएंट है 1 एंड 1. अंडरस्टूड? फिर 1 2 1, फिर 1 3 3 1. तो इफ यू लुक एट द कॉफिशिएंट्स, पहले 1 था, फिर 1 और 1 आए, फिर 1 2 और 1 आए, फिर 1 3 3 और 1 आए, है ना? यही यही चल रहे हैं. डू यू अंडरस्टैंड? तो दे फॉर्म अ ट्राइंगुलर शेप, इट्स कॉल्ड पास्कल्स ट्राइंगल. ठीक है? हर अगली लाइन में आराम से अगली निकाल सकता हूँ. कैसे? देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 2 बना, तो ये नीचे 2 आ गया. 1 1 ऐसे ही रखे मैंने साइड पे, फिर मैंने 1 1 ऐसे ही रखे साइड पे. 1 प्लस 2 3 आया, इसके बीच में लग गया. 2 प्लस 1 3 आया, इसके बीच में लग गया. अंडरस्टूड? आगे चलेंगे तो 1 ऐसे ही रखेंगे. 1 प्लस 3 4 आएगा, 3 प्लस 3 6 आएगा, 3 प्लस 1 4 आएगा, 1 का 1 आएगा यहाँ पे.
अंडरस्टूड? फिर आगे चलेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना? अगले में 1 + 4 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 + 6 10 आ जाएगा, 6 + 4 फिर से 10 आ जाएगा, 4 + 1 फिर से 5 आ जाएगा और पीछे 1 आ जाएगा। समझ रहे हो? यही इनके कोएफिशिएंट्स चलते रहेंगे आगे के आगे। अंडरस्टूड? सो द एक्सपेंशन दैट आई हैव फॉर पावर 4, ये देखो, ये पावर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने गलती से। ये पावर 1 के लिए, पावर 2 के लिए, पावर 3 के लिए, पावर 4 के लिए, पावर 5 के लिए, एंड सो ऑन। तो पावर 4 के लिए मेरी एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं 1 4 6 4 1, तो 1 यहाँ पे, 4 प्लस लग जाएगा बीच में, 6 4 एंड 1। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ x + y raised to power 4। अंडरस्टूड? अब ऐसे ही मेरे को अगर x + y raised to power 5 की एक्सपेंशन करनी पड़ेगी, आई डोंट थिंक यू विल फेस प्रॉब्लम इन दिस। यू विल हैव x, पहली बार में देखो 1 रखेंगे आगे, कोएफिशिएंट्स हम लोग बाद में यूज करते हैं, चलो पहले हम टर्म्स लिख लेते हैं सारी, फिर हम कोएफिशिएंट्स को यूज करेंगे। तो व्हाट आर द टर्म्स दैट आई हैव? सारी की सारी 5 पावर x को दे दो, प्लस x को 4 दो, अच्छा 5 y के साथ में लिखता हूँ मैं, x को 3 दो, x को 2 दो, x को 1 पावर दो, और x को कोई भी ना दो, और यहाँ y को कोई नहीं दी, यहाँ y को 1, यहाँ y को 2, y को 3, y को 4 और y को 5। अंडरस्टूड? ये मैंने लिख दिया। अब इसके आगे लगने हैं कोएफिशिएंट, यहाँ कोएफिशिएंट लगेगा 1, ये देखो कोएफिशिएंट लिखे हैं मेरे, 5 लगेगा अगला कोएफिशिएंट, 5। अगला कोएफिशिएंट मेरा है 10, फिर से 10, फिर से 5 और फिर 1। सो माय एक्सपेंशन इज x raised to power 5 plus 5x raised to power 4 y raised to power 1 plus 10x raised to power 3 y raised to power 2 plus 10x raised to power 2 y raised to power 3 plus 5x y raised to power 4 plus y raised to power 5। समझ गए? ये मेरी एक्सपेंशन हो गई पावर 5 के लिए। अंडरस्टूड? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। टिल नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? पास्कल ट्रायंगल तुमने देखा भी होगा शायद पहले, तुमने पढ़ा है तो, ओके। एंड पास्कल ट्रायंगल की हर एक अगली टर्म जो हम बात करते आ रहे हैं, ये 11 की पावर्स हैं। दिस इज 11 raised to power 1, दिस इज 11 का स्क्वायर, दिस इज 11 का क्यूब, ये 11 raised to power 4 है। अच्छा 11 raised to power 5 है ये, लेकिन 11 raised to power 5 मतलब कैसे बनेगा अगर लिखते हो तो? 11 raised to power 5 ऐसे सीधा नहीं कि ये 11 raised to power 5 ही है, जहां जहां 2 डिजिट्स हैं उनको एक एक डिजिट आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 1 लिखा, ये 1 आगे ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 0 में 1 ऐड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, पीछे 0 आ जाएगा, पीछे 5 आ जाएगा और पीछे 1 आ जाएगा। ठीक है? तो बेसिकली 11 raised to power 5 मेरा ये बनता है एक्चुअली। ओके फाइन अंशुमन, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है ना? 161051, प्रॉब्लम 161051। अंडरस्टूड? ये 11 की पावर है, तो ये 11 की पावर चलती है बेसिकली। समझ गए? पास्कल ट्रायंगल लिखना है, पास्कल ट्रायंगल इजी है। आगे 1 लिखेंगे, 1 का 1 ही रहेगा, 1 5 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 10 या 15 हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा, फिर से 6 हो जाएगा और लास्ट में 1 आ जाएगा। समझ रहे हो? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पास्कल ट्रायंगल एंड ऑल। बट ऑब्वियसली कंसिडरिंग कि तुम्हें टर्म लिखनी है, तुम हर बार पास्कल ट्रायंगल बनाने जाओगे, बहुत लंबा काम हो जाएगा। चलो तो इसकी हम एक्सपेंशन का एक वर्जन देखते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व कि जब भी इसकी एक्सपेंशन कर रहे हैं, हर एक टर्म किस फॉर्मेट में आ रही है कि आगे एक कोएफिशिएंट लगा हुआ है, लेट्स से a, ऊपर लगा हुआ x की पावर b लगी होती है, y की पावर c लगी होती है ना? यही एक्सपेंशन ऐसी हुई होती है ना? इसी फॉर्म में एक्सपेंशन हुई होती है। हर एक मतलब हर एक टर्म इसी फॉर्म में होती है। हर एक टर्म में a की वैल्यू कुछ अलग होती है, b और c की वैल्यू कुछ अलग होती है। एंड यू माइट हैव ऑब्जर्व कि जो b प्लस c है वो हमेशा n आ रहा है ना? तुम देखो जरा, b प्लस सी, ये 4 + 0 4 आ रहा है क्योंकि ऊपर n है, 3 + 1 4 आ रहा है क्योंकि ऊपर 4 है, 2 + 2 4 आ रहा है, 1 + 3 4 आ रहा है, 0 + 4 4 आ रहा है ना? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
कि हर एक टर्म जो मैं लिख रहा हूँ, इस एक्सपेंशन की हर एक टर्म जो मैं लिख रहा हूँ वो इस फॉर्मेट में है। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि आगे एक कोएफिशिएंट लगा हुआ है, लेट्स कॉल इट ए, ठीक है, एंड x की पावर b है, y की पावर c है। इज इट क्लियर? टू बी मोर प्रिसाइज, टू बी मोर प्रिसाइज, अगर मैं टर्म्स को लिखना शुरू करता हूं तो जो b आता है वो मेरा आता है n माइनस आर, और जो मेरा c आता है वो आता है r। अब r क्या है बेसिकली, व्हाट इज r हियर? NCR, जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं, राइट, जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट द फर्स्ट टर्म, जैसे मैंने x प्लस वाई का होल स्क्वायर किया, इसकी एक्सपेंशन करी, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो जब फर्स्ट टर्म की बात हो रही है, फर्स्ट टर्म की बात हो रही है मेरी, तो यहाँ पे 2 आ रहा है ना जो ऊपर पावर है, इसका मतलब r यहाँ पे 0 है, n माइनस आर, 2 माइनस 0, यहाँ पे 2 आ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझ रहे हो बात? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक्चुअली जो मेरा b है वो n टू 0 तक जाता है, तो यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड कि n जो है मेरा, वो देखो n जो ऊपर ये पावर n टू 0 पावर जाती है, x की पावर सॉरी, तो जा रही है वो n टू 0 जा रही है, ठीक है ना। तो पहली बार उसकी पावर मैं बोल सकता हूँ n माइनस 0 है, दूसरी बार उसकी पावर n माइनस 1 है, तीसरी बार n माइनस 3 है, करते करते हम लोग n माइनस n तक जाएंगे, विच इज 0, x की पावर्स में, ठीक है। और y की पावर्स में हम क्या करते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, एंड सो ऑन टिल हम n तक जाएंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। तो मेरा जो x की पावर b है उसको मैं लिख रहा हूँ n माइनस आर, c की पावर जो r है उसको मैं लिख रहा हूँ r। सो आई कैन ऑल्सो राइट x प्लस वाई रेज टू पावर n एज a इंटू एक्स रेज टू पावर, जो मैंने b लिखा था उसको मैं लिख रहा हूँ n माइनस आर, और जो मैंने यहाँ पे y के ऊपर लिखा था उसको मैं c लिखा था उसको मैं लिख रहा हूँ r। अंडरस्टूड? ठीक है ना, n माइनस आर और r मिलके क्या बनाते हैं, n बनाते हैं वापस। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब रह गया मेरा जो कॉफिशिएंट है, a कॉफिशिएंट है। अब ये क्या होता है, देखो वी आर अवेयर ऑफ व्हाट n इज, वी आर अवेयर ऑफ व्हाट r इज, माय कोफिशिएंट इज ऑलवेज NCR। ओके, माय कोफिशिएंट इज ऑलवेज NCR। अब तुम अगर इसको एक्सपैंड करते हो तो दिस विल बिकम n फैक्टोरियल बाय NCR, तुम्हें याद होगा n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। समझ रहे हो? आइडियली देखा जाए तो मैं यही कर रहा हूँ कि x की जो पावर है उसका फैक्टोरियल नीचे लिख रहा हूँ, y के जो पावर है उसका फैक्टोरियल नीचे लिख रहा हूँ। ऐसा हम कब करते हैं? देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, तुम्हें याद है जब कोई मेरे पास कोई वर्ड होता था, जैसे कि करियर, कोई ऐसा वर्ड है, मैं बोलता था हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन यू फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड करियर, तो हम क्या करते थे, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये 2 की रेपिटेशन थी, ये 2 की रेपिटेशन थी, 2 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल करते थे ना, याद है? तो दिस इज सिमिलर टू दैट। अब ये क्या है, हमने n की एक्सपैंड n को डिवाइड किया है, मतलब n एलिमेंट्स है मेरे पास, उनको डिवाइड किया है, जिसमें से n माइनस आर, मतलब सब x की जितनी पावर्स हैं, जैसे x की पावर 4 है तो सारे x सेम ही होते हैं। तो ऐसा है बेसिकली, मेरे को 4x डिवाइड करने हैं, 2y डिवाइड करने हैं, तो आई वुड राइट 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल। ऐसा ही होगा ना। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि x की पावर जो भी है यहाँ पे, उसका फैक्टोरियल यहाँ आ गया, और y की पावर जो भी है वो यहाँ पे आ गया। समझ रहे हो? सो आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑब्जेक्ट्स इन x एंड y, बट सिंस x के ऊपर जो भी पावर आएगी वो क्या क्या डिफाइन कर रही है मेरे को, कि हर एक आइटम सेम है वहां पे, और y के ऊपर जो भी पावर आएगी वो क्या डिफाइन कर रही है, कि हर एक आइटम सेम है वहां पे। डू यू अंडरस्टैंड? मैं ये तुम्हें ऐसे एक्सपैंड करके खोल के क्यों बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट तुम्हें जैसे तुम्हारी बुक्स वगैरह में फॉर्मूला लिखा होता है मैं बता सकता था, बट द रीजन आई एम एक्सपैंडिंग दिस एंड टेलिंग यू इज बिकॉज
this makes a basis for multinomials also, not only binomial. This makes a basis for multinomials also. मल्टीनोमियल्स का भी यही बेसिस है. मल्टीनोमियल मतलब दो से ज्यादा भी की भी एक्सपेंशन होगी तो यही बेसिस बनता है. डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सबको समझ आ गया ये? तो बेसिकली आई कैन से कि x प्लस वाई रेज टू पावर n जो है वो क्या है, वो समेशन है कौन सी वैल्यूज की, r की 0 से n तक चले हम लोग, जहां पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये मेरा कोफिशिएंट बनेगा, इंटू x रेज टू पावर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू y रेज टू पावर r फैक्टोरियल. सॉरी, नॉट अ फैक्टोरियल, मैंने n माइनस r लिखना था और r लिखना था. सॉरी, x रेज टू पावर n माइनस r एंड y रेज टू पावर r. ये इन सब की समेशन है, मतलब ऐसी टर्म्स चलती रहेंगी. जब r 0 होएगा तो मैं यहाँ वैल्यू डाल दूंगा n फैक्टोरियल, जो भी जितना जो भी यहाँ पे n होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल. ठीक है, तो ये 1 आएगा कट के, और x की पावर n हो जाएगी और y की पावर, मैं तुम्हें एक्सपैंड करके दिखाता हूँ इसको. सिंपल एक वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही ले लेते हैं. तो पहली टर्म समेशन है ये कुछ टर्म्स की. कौन सी टर्म्स की? पहली टर्म मेरी होगी n फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 अगेन 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, क्योंकि r 0 से n तक जाना है ना. ठीक है, x रेज टू पावर n माइनस r मतलब 2 माइनस 0 मतलब 2 आ गया, और y रेज टू पावर 0 समेशन करनी है, प्लस सेकेंड टर्म क्या आएगी, फिर से 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ n माइनस r, 2 माइनस 1 हो गया. अब r की वैल्यू 1 होगी ना, क्योंकि 0 से n तक जाना है, तो r 0 हो चुका, r 1 होगा. 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू x रेज टू पावर n माइनस r, 2 माइनस 1 1 हो गया, y रेज टू पावर r 1 हो गया, प्लस अगेन 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 माइनस, देखो r अब 2 हो गया ना, 2 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, x रेज टू पावर n माइनस r, 2 माइनस 2 मतलब 0 और y रेज टू पावर 2. तो यही मेरी एक्सपेंशन बनती है. इफ यू जस्ट लुक एट इट, ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा x स्क्वायर, प्लस ये 2 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही रह जाएगा, एक्स वाई, प्लस तो ये y की पावर में भी देख लो 2 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये 0 फैक्टोरियल खत्म हो गया ये, तो जी एक्स पावर 0 मतलब 1 y स्क्वायर. यही एक्सपेंशन बनी. डू यू अंडरस्टैंड? सो वी हैव अ जनरल फॉर्मूला फॉर एक्सपैंडिंग अ बाइनोमियल टर्म. ओके, जो भी पावर दी हो उसकी, उसको एक्सपैंड करने के लिए मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला बन गया. इज इट क्लियर? ठीक है, तो बेसिकली जो मेरी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म उस टाइम पे r 0 होता है. समझ रहे हो? ये पता है ना, फर्स्ट टर्म जो होती है t1 जो है, उस टाइम पे r 0 होता है. ठीक है ना, तो r 0 प्लस 1, तो मैं जो भी टर्म लिख रहा हूँ ना, r की वैल्यू जो भी है उससे अगली टर्म चल रही होती है हमेशा. r की वैल्यू 0 है तो फर्स्ट टर्म आएगी, r की वैल्यू 1 है तो सेकंड टर्म आएगी, r की वैल्यू थर्ड है तो फोर्थ टर्म आएगी, एंड सो ऑन. ओके, तो अगर मैं बोलूं कि सिक्स्थ टर्म निकालो, सिक्स्थ टर्म मतलब, सॉरी, तब मतलब r की वैल्यू उस टाइम पे क्या चल रही है, 5 प्लस 1. यस, r 5 होना चाहिए उस टाइम पे. ठीक है, किसी एक्सपेंशन की मैं सिक्स टर्म निकालने को बोल रहा हूँ, तो माई r इज गोइंग टू बी 5 देयर इन दैट केस. ठीक है, आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड दिस. इसको आगे जाके हम लोग यूज करने वाले हैं. ठीक है, चलो, अगेन कमिंग बैक टू दिस, मैं फिर से वही एक्सपेंशन पे आ रहा हूँ तुम्हारे पास. लेट्स से x प्लस वाई रेज़ टू पावर n की एक्सपेंशन हमें करनी है, तो उस एक्सपेंशन का जनरल फॉर्मूला क्या होने वाला है? जनरल फॉर्मूला क्या होने वाला है? आगे कोई कॉफिशिएंट आएगा, वॉट एवर कॉफिशिएंट, इंटू एक्स रेज़ टू पावर a, y रेज़ टू पावर b. ओके, तो ये कॉफिशिएंट क्या होगा हमेशा याद रखना, इट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a फैक्टोरियल इंटू b फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज़ टू पावर a, y रेज़ टू पावर b, प्रोवाइडेड a प्लस b इज ऑलवेज इक्वल टू n. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये चीज मैंने दोबारा लिखी, रीजन है उसका, मैं बताऊंगा क्या रीजन है, बट इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू
कि कोई भी टर्म आएगी एक्स प्लस वाई, समेशन है इस सबकी, इसकी समेशन है, बट कोई भी टर्म होगी वो इस फॉर्म में होगी कि कोई कॉफिशिएंट आएगा इंटू एक्स रेस्ट पर ए इंटू वाई रेस्ट पर बी, और आगे जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए फैक्टोरियल टू बी फैक्टोरियल, ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल क्या है, इसकी पावर्स, और ए प्लस बी मेरे को पता है एन। क्लियर है? मैंने ऐसा क्यों बताया तुम्हें, ये इस फॉर्म में क्यों बताया, क्योंकि ये मल्टीनोमियल्स के लिए भी एक्सपैंड होगा, सॉरी एक्सटेंड होगा। अगर मान लो मेरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड रेस्ट पर एन भी हो जाता, तो उसकी भी फॉर्म यही होती कि एक कॉफिशिएंट आता है, एक्स रेस्ट पर ए आता है, वाई रेस्ट पर बी आता है, जेड रेस्ट पर सी आता है, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एन हो। और सी क्या होता है, कॉफिशिएंट क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी फैक्टोरियल इंटू एक्स रेस्ट पर ए वाई रेस्ट पर बी जेड रेस्ट पर सी। इज इट क्लियर? कोई मल्टीनोमियल मतलब बड़ा वैल्यू भी है जिसको एक्सपैंड कर रहे हैं, नॉट ओनली टू टर्म्स, तीन टर्म्स भी होंगी, उसको भी एक्सपेंशन करते हैं, तो यही जनरल फॉर्म है उसकी। इज इट क्लियर? क्लियर विद दिस? सबको क्लियर हो गया ये? एंड यू माइट हैव आल्सो सीन कि जितने भी मैंने ये देखो पास्कल ट्रायंगल बनाया था हमने, कॉफिशिएंट लिखे हैं, हमेशा सेंटर वाला कॉफिशिएंट बड़ा, सबसे बड़ा कॉफिशिएंट होता है। अच्छा इसमें सेंटर में ही है कोई फिक्स, तो ये दोनों कॉफिशिएंट सबसे बड़े वाले कॉफिशिएंट है। इस सब में सेंटर है तो ये सबसे बड़ा कॉफिशिएंट है, इसमें सेंटर कोई नहीं है तो ये दोनों बड़े, सबसे बड़े कॉफिशिएंट है। ठीक है, इसमें सेंटर है तो ये सबसे बड़ा कॉफिशिएंट है, समझ रहे हो? सो द मिडिल टर्म इज ऑलवेज गोइंग टू हैव द हाईएस्ट कॉफिशिएंट। यस यस यस, मल्टीनोमियल होगा तो हमेशा एबीसी की वैल्यू गिवन होती है। मैं तुम्हें एक्सपेंशन करने में बोलूंगा कि अच्छा इसका कॉफिशिएंट बताओ, एक्स रेस्ट पर 2 वाई रेस्ट पर 3 जेड रेस्ट पर 1 का कॉफिशिएंट बताओ। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि मिडिल टर्म आल्सो ऑलवेज हैज द हाईएस्ट बायनोमियल कॉफिशिएंट? आई टॉक अबाउट द क्वेश्चंस। ओके श्वेता, मैं अभी क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, एक बार मैं बेसिक बता दूं, अब क्वेश्चन ही शुरू कर रहे हैं हम लोग। ओके, ओके मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, सिंपल question, very easy question. You have a binomial expansion 1 plus x raised to power 10. My question is, what is the coefficient of x raised to power 7 in this expansion? x raised to power 7 का coefficient बताना है तुम्हें, ठीक है? What are you going to do? x raised to power 7 आना चाहिए मेरे पास। x raised to power 7 कब आएगा? जब n minus r की वैल्यू मेरी 7 बननी चाहिए। You should understand this, है ना? सॉरी, x raised to x सेकंड टर्म है, x इसमें फर्स्ट टर्म नहीं है, x सेकंड टर्म है, तो x की वैल्यू जो भी है वो r होगा, बेसिकली 1 रेस्ट पर n माइनस आर आएगा, x रेस्ट पर r आएगा ना। तो अगर x रेस्ट पर 7 पूछा है तो मैं सेवंथ टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट द सेवंथ टर्म। करेक्ट अर्शदीप, करेक्ट ईशा, करेक्ट अभया। बताओ श्वेता, जेसिका, रेस्ट ऑफ यू। x रेस्ट पर 7 मतलब मैं r7 की बात कर रहा हूँ, r7 है तो तुम्हें पता है कि ncr इज द कोएफिशिएंट ऑफ दैट टर्म, n क्या है मेरा, 10 है, c7 10c7 बताना है बेसिकली। यस अर्शदीप, इट विल बी एट्थ टर्म, करेक्ट। मैं ये भी पूछ सकता हूँ विच टर्म विल हैव x रेज टू पावर 7? ओके, अंडरस्टूड, दिस कुड बी माय क्वेश्चन एज वेल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा मैं ये भी पूछ सकता हूँ 1 प्लस एक्स रेज पर 10 के अंदर फाइंड द मिडिल टर्म इन दिस एक्सपेंशन, फाइंड द मिडिल टर्म इन दिस एक्सपेंशन। अब मिडिल टर्म 10 है ऊपर लिखा हुआ, तो मैंने तुम्हें बताया था कि टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, हमेशा इससे एक ज्यादा। हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर इन दिस एक्सपेंशन? हमने देखा जब पावर 2 होती है, तीन तीन एक्सपेंशन में 3 टर्म्स होती हैं, पावर 4 होती है तो 5 टर्म्स होती हैं, एंड सो ऑन।
Yes, so 11 terms would be there. Okay, 11 terms है, तो मिडिल टर्म कौन सी टर्म होगी फिर? मिडिल टर्म कौन सी टर्म होगी फिर? सिक्स्थ टर्म, वेरी गुड। सिक्स्थ टर्म बतानी है। सिक्स्थ टर्म T6 मतलब T5+1, तो R की वैल्यू क्या होगी उस टाइम पे? दिख रहा है ना, R की वैल्यू क्या होने वाली है? 5। तो व्हाट इज गोइंग टू बी दैट टर्म? मैंने सिर्फ कोफिशिएंट नहीं पूछा, कोफिशिएंट जो लोग बता रहे हैं, आई डोंट नीड द कोफिशिएंट ओनली, आई नीड द होल टर्म। एब्सोल्युटली करेक्ट अनुज, करेक्ट अर्शदीप। तो श्वेता, T6 बताना है, पता चल रहा है। R की वैल्यू 5 है, पता चल रहा है। NCR, तो 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 10C5 निकालना था बेसिकली। ओके, इंटू 1 रेज टू पावर n माइनस आर, 10 माइनस 5, 5 हो गया, 1 के पावर कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू x रेज टू पावर 5, है ना, यही बनेगा। दिस इज गोइंग टू बी माई एक्सपेंशन। अभया कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार। करेक्ट आंसर ईशा, yes, now it's correct. So the answer 10 factorial by 5 factorial into 5 factorial, you can solve it. बचेगा 10 9 8 7 6 by 5 4 3 2 1, 5 इंटू 2 10 कट गया, 4 से ये 2 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, बस सब कुछ कट गया। 7 6 42, 42 2 84, 84 3 it's 252. So it's 252 x raised to power 5. This is going to be my middle term. Understood, Shweta? This is how the questions are going to be. Okay. एक और देता हूँ, सेम सिमिलर क्वेश्चन। Sorry. What is going to be the middle term of this expansion? What is going to be the middle term of this expansion? Yes, बिल्कुल ठीक श्वेता। मिडिल टर्म 6 ही होगी ना, 11 टर्म्स है, तो मिडिल टर्म इज गोना बी 6th टर्म ओनली। 6th टर्म तुम्हें फाइंड आउट करनी है, इन दिस केस कुड बी अ लिटिल लेंथी। टू और 3 की पावर्स के फॉर्म में बता दो, अगर तुम्हें जिसकी भी पावर बचती हैं उसके फॉर्म में बता दो। अनुज, तुमने एक शायद माइनस साइन नहीं लगाया, माइनस साइन चाहिए। यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई इट कंप्लीटली, जस्ट टेल मी द आंसर एज सच, ऐसे ही। अनुज करेक्ट आंसर, बट माइनस साइन लगा लो आगे। ओके, ईशा तुमने मल्टीप्लाई करके बताया है, लेट मी मल्टीप्लाई एज वेल। Yes, your answer is right, Isha. Abhay, your answer is right. Arshdeep, तुमने, yes, your answer is also right, Arshdeep. जैसिका, तुमने सारा काम मेरे लिए छोड़ दिया है, तो ठीक है वैसे आंसर तुम्हारा। गुड। Yeah, Arshdeep, your answer was right earlier also. I saw your seen your answers.
हाँ, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो संचित, दैट्स ऑल्सो करेक्ट. Prableen, that's correct answer. श्वेता, आंसर ऐसे नहीं लिखोगे, मतलब नहीं बन रहा ये मल्टीप्लाई होंगे सारे. there's no माइनस, माइनस साइन सबसे आगे लगा दो, मल्टीप्लाई होंगे सारे. तो टोटल टर्म्स 11 है, आई नो दैट. टोटल टर्म्स 11 है, तो द मिडिल टर्म इज गोना बी सिक्स्थ टर्म, T6. T6 का मतलब है T5 + 1, मतलब R मेरा 5 होने वाला है, राइट. सो सिंस देयर आर NCR होता है, तो सिंस देयर आर 10 टर्म्स, इट्स गोना बी 10C5. ओके, इंटू पहली टर्म 3x है, 3x रेज़ टू पावर n - r, 10 - 5 5. ओके, इंटू -2 की पावर r 5. दिस इज गोना बी द आंसर. इसको सॉल्व कर सकते हो, पूरा करना हो. 10C5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 252. इंटू 3 रेज़ टू 5 243 हो जाएगा. इंटू 2 रेज़ टू 5 32 हो जाएगा. आगे माइनस साइन लगा दो क्योंकि माइनस लगा हुआ है. इंटू x रेज़ टू पावर 5. Okay, that's gonna be the answer. Understood? If you want to multiply it, you can multiply it. Clear with this? अच्छा, ऐसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. What is the, tell me the coefficient of x raised to power 4. What is the coefficient of x raised to power 4 in this expansion? What is coefficient of x raised to power 4 in this expansion? इसी expansion में what is the coefficient of x raised to power 4? No, that's not right, Prableen. That's right, Arshdeep. नो जैसिका, तुम वो भूल गई 3 की पावर्स एंड 2 की पावर्स. श्वेता, तुम भी भूल गई 3 की पावर्स 2 की पावर्स. अनुज करेक्ट आंसर. नहीं, अनुज, हाँ करेक्ट आंसर, अनुज करेक्ट आंसर. ईशा करेक्ट आंसर. प्रबलीन, तुम भूल गई पावर्स ऑफ 3 and 5. सॉरी, 3 and 2. 3 and 2 की पावर्स भूल गए. करेक्ट आंसर अभय, करेक्ट आंसर. संचित, नेगेटिव नहीं आएगा. और 10C4 नहीं, हाँ 10C4 10C6 इज सेम, दैट्स फाइन. यस सृष्टि. सृष्टि, मैंने सिर्फ कॉफिशिएंट पूछा है, तो तुम्हें एक्स रेज़ टू 4 लिखने की जरूरत नहीं है साथ में. ओके, सो मेरी टर्म थी 3x - 2 रेज़ टू पावर 10. तो मेरे को x की पावर 4 चाहिए, ठीक है ना. x की पावर 4 चाहिए. x की पावर, वैसे 3x की पावर n - r होती है ना, तो n - r की वैल्यू मेरे को 4 चाहिए. अब n मेरा 10 है, 10 - r मेरे को 4 चाहिए. सो r मेरा होना चाहिए 6. ओके, r शुड बी 6. क्लियर. और मेरे को टर्म कौन सी निकालनी पड़ेगी? TR+1 मतलब 6+1 मतलब T7. तो ये होगा NCR, मेरे को पता है 3x रेज़ टू पावर n - r इंटू -2 रेज़ टू पावर r, ये सबको पता है. ओके, अच्छा, यू गोना सॉल्व दिस. तो अब 10 टर्म्स हैं, C6 और 6 है, तो 10C6. 3x रेज़ टू पावर 10 - 6 4 आ गया अपने आप.
और -2 की पावर यहाँ पे आ जाएगा 6। अब इवन पावर है तो माइनस माइनस साइन सारे कट जाएंगे, इसलिए संचित माइनस नहीं आएगा, समझ रहे हो। 10c6 you can solve 10 factorial by 6 factorial into 4 factorial into 3 raised to power 4 into ये 2 raised to power 6 into x raised to power 4। ओके, तो ये मेरा कोफिशिएंट है सिर्फ, दिस इज व्हाट आई नीडेड। अब ये कितना आ रहा है देख चेक कर सकते हैं, ऊपर बचेगा 10 9 8 7 4 3 2 1, मैंने 6 फैक्टोरियल काट दिया है। ओके, तो 4 इसके साथ कट गया, 2 2 इसके साथ कट गया वापस, 3 इसके साथ कट गया, 30 into 7 210 into 3 raised to 4 is 81 into 2 raised to 6 is 64। So this is gonna be my coefficient. Okay, you can multiply this, you can put this in terms of powers of 2 3 and 5 and 7, जो भी बचते इसमें factors आते हैं, या फिर complete number, depends on how the options are given। Okay, another question is, another type of question that they ask in this is, what is the sum of coefficients of this expansion, sum of coefficient, जितने भी expansion जितने भी coefficients आएंगे उनका sum क्या आएगा। तो उसका सिंपल सा फंडा है, you put x as 1, x1 डालने के बाद जो वैल्यू आ रही है वही तुम्हारा आंसर है, 3 into 1 minus 2 raised to power 10। तो 3 minus 2 1, 1 raised to power 10 मतलब 1 आ गया आंसर। सम ऑफ योर कोएफिशिएंट्स इज गोइंग टू बी 1। ये किसी भी एक्सपेंशन के लिए होल्ड करेगा, चाहे वो ये एक्सपेंशन है। तो अगर x को 1 डाल देंगे, 1 plus 1 raised to power 10, we get 2 raised to power 10, 2 raised to power 10 is 1024। that's sum of your coefficients। ये ऊपर जितने भी हमने टर्म्स करी हैं, एक्सपेंशन करी है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x और y दोनों को 1 डाल दो, 1 plus 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ही आ रहा है, 1 plus 2 plus 1 कोएफिशिएंट्स का सम 4 आ रहा है। आगे x प्लस वाई रेस्ट पर 3, इसको 1 डाल लो, 1 डालो, 1 plus 1 2, 2 रेस्ट पर 3 8 हो गया, 1 plus 3 4 और 3 7 और 1 8। ठीक है, दिस स्टेम्स फ्रॉम द सेट थ्योरी, जब हमने किया था तुम्हें याद होगा कि ये 3 आइटम को बांटना है, 2 लोगों में किस किस तरीके से बांट सकते हो, तुम्हें याद है ना। एक इंडिविजुअल पोर्शन होता है ना, एक ये पोर्शन होता है, एक ये पोर्शन होता है, 3 जब 2 पोर्शन में बांटना है 3 पोर्शन होते हैं, ठीक है ना। ये वैसा ही है, डिवीजन वहीं से आते हैं ये, ठीक है। तो सिंपल याद रखो, और कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ कि जो भी अंदर वेरिएबल्स हैं उनको 1 से रिप्लेस कर दो एंड एक्सपेंशन कर दो इसकी, यू विल गेट द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स। अब जैसे 3x माइनस 2 रेस्ट पर 10 था, तो 3x की वैल्यू 1 डाली, माइनस 2 रेस्ट पर 10, 3 minus 2 1, 1 रेस्ट पर 10 1, इसकी एक्सपेंशन का के कोएफिशिएंट्स का सम 1 ही आने वाला है। ठीक है, 1 क्यों आएगा, क्योंकि कुछ पॉजिटिव आ रहे हैं कुछ नेगेटिव आ रहे हैं, तो पता चल रहा होगा एक टर्म पॉजिटिव आ रही है एक नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव वाली पॉजिटिव वालों को काटती रहेंगी या उसमें से माइनस होती रहेंगी, और लास्ट में एक 1 बचेगा सिर्फ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अच्छा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और आता है, x स्क्वायर प्लस लेट्स से 3/x raised to power 15। now the question is, when you expand this, which term will be independent of x, which term will be independent of x। independent of x का मतलब क्या है कि x उसमें नहीं आएगा। वो कब नहीं आएगा, जब ऊपर नीचे बराबर x होंगे और वो कट जाएंगे। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर, ये जो पहली टर्म है, इसकी पावर n माइनस आर आती है, और 3/x की पावर r आती है, तो ये बेसिकली जो भी पावर बनेगी ये इक्वल बनेगी और ये कट जाएगा आपस में। इसका ये मतलब नहीं कि n माइनस आर और r इक्वल बनेंगे, इसका ये मतलब है कि जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये बन जाएगा x रेज टू पावर 2n माइनस 2r इंटू 3/x रेज टू पावर r। देखो यहाँ पे x की पावर 2n माइनस 2r है, यहाँ 3/x की पावर r है ना, तो ये आपस में कटने चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब 2n माइनस 2r जो है वो r के इक्वल होना चाहिए, मतलब 2n शुड बी इक्वल टू 3r। ठीक है, तो यू कैन सॉल्व दिस, r की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। करेक्ट आंसर अर्शदीप,
तो 2n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15, मैंने तुम्हें 15 दिया है ऊपर, तो 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 3r, r इज इक्वल टू 30/3, 10 आ गया। r 10th है तो टर्म कौन सी होगी, r प्लस 1 मतलब t 11th टर्म। तो जो 11th टर्म लिखोगे वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी, मतलब उसके अंदर x नहीं होगा। सो दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन, फाइंड आउट द 11th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, फाइंड आउट द 11th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। ओके 11th टर्म फाइंड आउट करके बताओ मेरे को। बड़ा इजी था ये। करेक्ट आंसर अर्शदीप, ईशा, अनुज तुमने सॉल्व करके दिया है, मेरे को चेक करना पड़ेगा एक बारी। चलो एनी हाउ, प्रणव करेक्ट आंसर। श्वेता फाइंड आउट द आंसर। Okay, so a lot of answers have come in. Okay, to look at this answer, R is 10, I know that. Okay, अच्छा R 10 है तो मेरा coefficient is going to be, just a second, NCR हमें पता है, तो N is 15, so 15C 10 into मेरी expansion क्या थी, this was x square raised to power n minus r, 15 minus 10 5 आ जाएगा यहाँ पे, into 3 by x raised to power 10 आ जाएगा। समझ रहे हो, ये कट जाएंगे आपस में, सॉरी 3 by x raised to power 10 था तो 3 raised to power 10 भी रहेगा, तो 15C 10 into 3 raised to power 10। अब काफी लोगों ने इसको सॉल्व भी किया है, 15C 10 जिन्होंने सॉल्व किया है, 3003 इज द वैल्यू into 3 raised to power 10, ठीक है। तो काफी लोगों ने उसको फैक्टर्स के फॉर्म में बताया है, तो यू कैन मल्टीप्लाई योर फैक्टर्स एंड चेक की 3003 आ रहा है कि नहीं। हाँ, एक दो फैक्टर्स मैंने चेक किए हैं,
3003 आ रहा है जिन्होंने लिखा है। श्वेता, you can check your answer now. ठीक है, Arshdeep, वो nothing. Do you remember this sum NC0, NC1, NC2, NC3 up to NCN? Do you remember this sum? What is this sum? Set theory में भी discussed, no? 2 power n. तो वही है यहाँ पे एक्सपेंशन में भी, x प्लस वाई रेस्ट पर n करते हो 2 पावर n आ जाता है, क्योंकि एक्चुअली डिवीजन NC0, NC1, NC2 यही तुम्हारे वो बनते हैं ना, एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट्स यही बनते हैं ना। ठीक है, इसलिए 1 1 डालते हो तो आ जाता है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? That becomes I mean, the derivation becomes very difficult, and that's why I've taken up a single term and a simple term and explained it to you कि जो भी जहाँ पे डालोगे 2x होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 2x x या 1 आ जाएगा। एक्चुअली वो कोएफिशिएंट को 2 दे रहा है ना, हर फैक्टर को 2 दे रहा है, समझ रहे हो, 2 की पावर दे रहा है हर एक फैक्टर को। ठीक है, और वही 2 की पावर मैं भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे। जब मैंने 2x कर दिया इसको तो 2 इंटू 1 प्लस वाई, 2 इंटू 1 प्लस 1 रेस्ट पर n हो जाएगा, मतलब 3 रेस्ट पर n हो जाएगा ना ये। ठीक है, एक्चुअली क्या है, इसने एक फैक्टर ऑफ 2 इंट्रोड्यूस किया हर जगह पे, क्योंकि जब भी तुम यहाँ पे इसकी पावर लिखोगे 2x रेस्ट टू पावर n माइनस आर, n लिखोगे, 2x रेस्ट टू पावर n माइनस आर लिखोगे, तो एक 2 का फैक्टर ही इंट्रोड्यूस हो रहा है, समझ रहे हो, हर जगह। यू कैन टेक अ सिंपल टर्म, छोटी सी एक टर्म लेके ऊपर स्क्वायर क्यूब डाल के यू कैन वेरीफाई, ठीक है। यू कैन प्रोबब्ली ट्राई 2x प्लस y का होल क्यूब या स्क्वायर, and you can try what role does this 2 play. Okay, this is a plus 2ab plus b square, a square, sorry, plus 2ab plus b square. What is the role of this 2? ये अकेला x square रहता, लेकिन इसने एक आगे 2 इंट्रोड्यूस कर दिया, तो एक 2 स्क्वायर का फैक्टर बढ़ा दिया इसने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल 2 का फैक्टर बढ़ा दिया। ठीक है ना, चलो ठीक है, ओके ग्रेट। Okay, next let me give you another question now. ओके, क्वेश्चन दे रहा हूँ तो मैं, देखो जरा, बाइनोमियल नहीं दे रहा हूँ अभी, मल्टीनोमियल दे रहा हूँ। क्वेश्चन सिंपल सा, x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू पावर n। ठीक है, इसकी एक्सपेंशन हमें सबको पता है, हमने डिस्कस करी थी, ये होगी समेशन, किसकी समेशन, r की, लेकिन r लिखूंगा यहाँ पे मैं a b c लिख रहा हूँ, 0 टू n जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे कोएफिशिएंट होगा n फैक्टोरियल बाई a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल, और x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c। वी नो दिस एक्सपेंशन राइट, और मुझे ये भी पता है कि a प्लस b प्लस c जो है वो n बनना चाहिए। अंडरस्टूड? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं इससे कि x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू पावर 7 में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब वाली टर्म की एक्सपेंशन फाइंड आउट करो। सॉरी, एक्सपेंशन नहीं, इसका कोएफिशिएंट फाइंड आउट करो। फाइंड द कोएफिशिएंट of x square y square z cube in the expansion of this multinomial, trinomial. Try finding this out, it's pretty easy. Very good, Abhay. Absolutely correct, Arshdeep.
Anuj correct, Isha correct. No, Shweta, you've done some mistake somewhere. It's gonna be 7 factorial. ये देखो ABC की वैल्यू तुम्हें दी हुई है. तो 7 factorial by 2 factorial into 2 factorial into 3 factorial. बस इसको सॉल्व करना है तुमने. That will give you the coefficient. So the answer is coming out to be 210. जिन लोगों ने find out किया है 210, that's the correct answer. Mostly 210 सबने दे दिया आंसर. That's the correct answer. ठीक है, समझ आया? क्लियर हुआ ये? चलो अब इसकी बताओ फिर कोएफिशिएंट क्या होगा. What is the coefficient of this expansion? Quickly. ऊपर वाली में ही x plus y plus z raised to 7 में. लो फटाफट से सबने जबरदस्त 420 आंसर दे दिया. बट ये क्वेश्चन 420 वाला था. तुमने नोटिस नहीं किया 2 + 3 + 1 कितना बना? हाँ, यू शुड हैव चेक्ड दिस. करेक्ट जेसिका. a + b + c बन ही नहीं रहा 7 के इक्वल, 6 बन रहा है ना. तो तुम कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? देयर इज नो सच टर्म विद दिस. आई मीन ऐसी कोई टर्म ही नहीं है x² y³ z वाली. तो उसका कोएफिशिएंट कहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे? देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी टर्म लाइक दिस. ओके, अंडरस्टूड. तो ये क्वेश्चन तुम्हें मामू बनाने के लिए था. ठीक है. Okay, how many terms are there in the expansion of a multinomial? How many expansion terms are there in expansion of a multinomial? बाइनोमियल में तो सिंपल था कि n है तो n+1 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे. मल्टीनोमियल की एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे? Nobody has answered yet. How many terms will be there in the expansion of this multinomial? No, that's wrong, Manya. No, that's wrong, Arshdeep. Okay, so number of terms. ये तुमने कभी पढ़ा नहीं है क्या फॉर्मूला? The formula is n plus r minus 1 cr minus 1. Okay, n plus r minus 1 cr minus 1, जिसमें r इसमें क्या है? r is 3. क्योंकि इसमें पावर्स को तो एबीसी लिखा था हमने, r तो लिखा ही नहीं था पावर को. r is the number of these variables. Okay, n plus r minus 1 cr minus 1. I'll tell you how we reach this. But ये समझ आ गया फॉर्मूला n plus r minus 1 cr minus 1. It is the distribution formula. Okay, this is called the distribution formula. ये r वो वाला r नहीं है अर्शदीप जो ऊपर हमने बाइनोमियल में पढ़ा. ये r मैं बोल रहा हूँ ये 3 बंदे या 3 वेरिएबल. ओके, उनकी पावर्स की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पावर्स में n n माइनस r कुछ नहीं है. पावर्स में तो abc था हमारा. ये r3 है, 1 2 3 जितने वेरिएबल उसको r बोल रहे हैं हम लोग. ठीक है, n plus r minus 1 cr minus 1. Okay, now this is just like distributing n objects among r people. Okay, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हैव यू डन डिस्ट्रीब्यूशन? कभी पढ़ा है पहले कि अगर n ऑब्जेक्ट्स को तुमने r पीपल में या r ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो हाउ डू वी डिवाइड इट? हैव यू स्टडीड अ फॉर्मूला फॉर दैट?
नहीं, n ऑब्जेक्ट्स को r लोगों में डिवाइड करना है यार अर्शदीप। तो मान ले जैसे अभी तक हम करते आए थे, एक्चुअली वो हमने क्या किया था बाइनोमियल में, हमने किया था कि n+1 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाती हैं। वो कहाँ से, वो भी इसी फॉर्मूला से आती हैं। अब उसमें तुम x+y⁴n करते हो, n का मान लो 2 कर लेता हूँ मैं, तो इसमें तुम्हें पता 3 टर्म आनी है। ये भी 2 प्लस ये 2 लोग हैं, 2+2 - 1 c2 - 1 यही करते हो तुम, ठीक है ना। तो 2+2 4 - 1 3, 3c1 3 आ गया, समझ रहे हो, क्योंकि तुम इसमें करते हो n+r-1 c r-1, तो r तो 2 ही है, तो n+2 - 1 c2 - 1 मतलब n+1 c1, तो आ गई n+1 नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल, ठीक है। तो यही फॉर्मूला होता है n ऑब्जेक्ट्स को r पीपल में डिवाइड करने का, n+r-1 cr-1। लेट मी जस्ट शो यू हाउ। लेट अस थिंक ऑफ 7 आइटम्स, ठीक है, इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 डिवाइड करना है। 7 आइटम्स को 3 के ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड पार्टीशनिंग, दिस इज अ टॉपिक इन परमुटेशन कॉम्बिनेशन कॉल्ड पार्टीशनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई मीन इंपॉर्टेंट इसमें नहीं बोल रहा हूँ मैं, अदरवाइज बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, बट परमुटेशन कॉम्बिनेशन आई गेस तुम्हें नहीं, तुमने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। दिस इज कॉल्ड पार्टीशनिंग। नाउ लेट मी जस्ट शो यू। 7 आइटम्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। लेट्स से दो 7 आइटम्स आर द बॉल्स, ओके, बॉल्स 1 2 3 4 5 6 7। 3 ग्रुप्स में डिवाइड करने का मतलब है कि 3 लोगों को देनी है ये, है ना। 3 लोगों को, 3 बच्चे हैं ABC, उनको देने हैं 7 बॉल्स, किसी भी तरह से दे सकते हैं। तो किसी भी तरह से देने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इनके अंदर पार्टीशंस करनी पड़ेंगी, समझ रहे हो, पार्टीशंस करनी पड़ेंगी। पार्टीशन मान लो ये वॉल है मेरी पार्टीशन की, जैसे मैंने यहाँ एक पार्टीशन करी, तो 2 ग्रुप्स बन गए, 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी ना ये, और 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो एक पार्टीशन और चाहिए। यू अंडरस्टैंड, एक पार्टीशन और चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो एक पार्टीशन और चाहिए, कहीं भी आ जाए, यहाँ आ जाए सपोज, होगी ना 3 लोगों में डिवीजन, ठीक है, 3 लोगों में डिवीजन हो गई। अब अगर इनका अरेंजमेंट करना है मुझे, ये अरेंजमेंट तो सबका ही करना पड़ेगा ना, पार्टीशन जरूरी थोड़ी यहीं पे फिट होगी, पार्टीशन यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, कहीं भी आ सकती है पार्टीशन, ठीक है ना, पार्टीशन कहीं भी आ सकती है। जब पार्टीशन कहीं भी आ सकती है तो इजंट इट जस्ट लाइक अरेंजिंग these 7 balls and these 2 walls, इनको एक लाइन में अरेंज करना ही है, सिर्फ सिंपल अरेंजमेंट ही है इनका, एक लाइन में अरेंजमेंट है इन सबका। तो इनका अरेंजमेंट अगर मैं नॉर्मली करता तो कैसे करता, एक्चुअली ये कितने आइटम हो गए आप देखो जरा, ये टोटल इंक्लूडिंग पार्टीशन ये कितने आइटम्स हो गए, कितने आइटम्स हैं इंक्लूडिंग बॉल्स एंड दीज पार्टीशंस, कितने आइटम्स हैं। 9 आइटम्स है, करेक्ट, 9 आइटम्स है एक्चुअली, क्योंकि 2 पार्टीशन है सिर्फ, पार्टीशन थोड़ी 3 रखी हमने, 2 पार्टीशन है सिर्फ। तो ऐसा नहीं हो गया ये कि 9 ऑब्जेक्ट्स को तुमने अरेंज करना है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अरेंजमेंट करना आपस में 9 फैक्टोरियल बेस में होगा, लेकिन 7 ऑब्जेक्ट एक तरह के हैं, 7 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, और 2 ऑब्जेक्ट एक तरह के हैं, ये दोनों एक तरह के हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। यू अंडरस्टैंड दिस, ऐसे ही होगा ना अरेंजमेंट इनका, ठीक है, क्लियर है ये, सबको ये चीज समझ आई कि नहीं। ये मेरे बी हैं, मेरे बॉल्स, और ये मेरे पी हैं पार्टीशंस। तुम्हारे पास 7 बी और 2 पी हैं, उनको अरेंजमेंट करना है, कैसे करोगे, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वेज में, दैट्स द नंबर ऑफ वेज इन विच वी डू द अरेंजमेंट। ये वैसे 9 बना कैसे, ये 7 और 3 3 3 नहीं पार्टीशन ले रहे हम, 2 पार्टीशन ले रहे हैं, ग्रुप 3 है लेकिन पार्टीशन 2 हो रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 7 + 3 - 1, इतने टोटल अरेंजमेंट्स बनते हैं, है ना, डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल और 3 - 1 फैक्टोरियल, कैन वी से दैट। अच्छा ये सारे का फैक्टोरियल, इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो रहे हैं, इसी 9 फैक्टोरियल को मैंने ऐसे लिखा है, समझ रहे हो, सिर्फ 2 को मैंने रिप्लेस कर दिया 3 - 1 से। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस।
सबको समझ आ रही है ये चीज? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बिकॉज शायद तुमने पहले नहीं देखा, बट है बहुत इजी। ओके, तो इसीलिए मेरा फॉर्मूला बेसिकली देखा जाए तो ये यही है, 7 + 3 - 1 का सारे का फैक्टोरियल। ठीक है, या फिर अगर इसको तुम ऐसे लिखने के बजाय 7 + 3 - 1 C3 - 1 करते हो तो भी यही आने वाला है मेरे पास। नो, वाई नॉट इंक्लूडेड अर्शदीप? अगर एक्सट्रीम एंड पे पार्टीशन आ जाएगी तो क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चे को कोई बॉल ना मिले? ऐसा नहीं हो सकता? मान ले पार्टीशन इधर आ गई, चल मैं तेरी बात मानता हूँ, मान ले मेरी पार्टीशन यहाँ आ गई, तो ऐसा हो सकता है कि इधर वाले बच्चे को 0 मिला, कुछ नहीं मिला, ठेंगा, और बाकियों को बॉल्स मिल गई, दो बच्चों को। तो ऐसा बाइनोमियल एक्सपेंशन में होता नहीं है कि x की पावर 0 आ जाए? पॉसिबल तो है ना ये, और y और z ही सारी पावर्स लेके जाएं, 2 5 जो भी पावर्स हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं? इजंट दिस पॉसिबल? चलो बाइनोमियल की ना भी बात करें, मैंने सिर्फ ये बोला था कि 7 बॉल को तुम्हें 3 बच्चों में डिवाइड करना है। मैंने ये थोड़ी बोला हर एक को एक देनी देनी है। हाँ बिल्कुल, पार्टीशन स्टूडेंट्स के लिए, बिल्कुल। हाँ, नंबर ऑफ बॉल्स टू द स्टूडेंट्स, यस। तो एक 0 बॉल मिल गई किसी को, ठीक है ना, तो दैट पार्ट कुड बी इंक्लूडेड। समझ गए? इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां से मेरा फॉर्मूला बन गया n + r - 1 CR - 1। ओके, यही तो हम बाइनोमियल में करते हैं। n नंबर ऑफ, जो ऊपर n लिखा होता है, ऊपर जो n लिखा होता है, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या पावर्स है मेरे पास जो मुझे 3 लोगों में डिवाइड करनी है, वही तो हम कर रहे हैं। नाउ यू कैन ऑल्सो आंसर द क्वेश्चन जहां पे वो बोले, कभी क्वेश्चन आए, मान लो कि आई हैव 10 चॉकलेट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 स्टूडेंट्स, in how many ways can I do that? Simple, 10 + 3 - 1 C3 - 1। Understood? 10 + 3 - 1 C3 - 1। In fact, algebra में कभी इंटेग्रल सॉल्यूशंस का क्वेश्चन आए, let's say x + y + z is equal to 10 है, how many integral solutions are there? How many integral non-negative integral solutions are there? Sorry, non-negative integral solutions are there। non-negative मतलब, non-negative का क्या मतलब हुआ कि इनके पास 0 1 2 3 कोई ना कोई इंटीजर आ सकता है। इसका आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा? हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल फॉर दिस equation x + y + z is equal to 10? How many integral solutions, non-negative integral solutions are possible for this equation? बता सकता है कोई? नो प्रणव, नो अर्शदीप, अरे क्या कर रहे हो? ये भी तो यही है, isn't the same thing कि 10 चॉकलेट को 3 लोगों में डिवाइड करना है। ये वही चीज मैं बार बार पूछ रहा हूँ घुमा फिरा के। 66 should be the answer, correct। 12C2 should be the answer। Jessica, that's correct। Anuj, that's correct। now Avneet, that's correct। एक ही बात पूछ रहा हूँ मैं कि नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस बताओ कितने होंगे, इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? क्योंकि देखो तुम, नॉन नेगेटिव का मतलब 0 से 0 या उससे ऊपर कोई भी इंटीजर। तो ये भी तो पार्टीशन क्वेश्चन है कि 10 चॉकलेट है, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। कैसे करोगे? कैसे करोगे? 10 + 3 - 1 C3 - 1। ठीक है ना, पार्टीशन से ही सारा कर सकते हैं हम लोग। इज इट क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया?
सबको क्लियर हो गया ये? ठीक है। अच्छा, कई बार ही मान लो, मैं तुम्हें एक और बता देता हूँ, एक और क्वेश्चन बन सकता है। सपोज जब मैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 10 ले रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर, आई एम कंसिडरिंग द फैक्ट कि somebody कैन हैव वैल्यू जीरो आल्सो, मतलब somebody some वेरिएबल कैन हैव वैल्यू जीरो आल्सो, है ना? मैं कंसिडर कर रहा हूँ ना ये चीज को, क्योंकि वो अर्शदीप ने जो क्वेश्चन पूछा था कि पार्टीशन में ये आगे पार्टीशन लग जाए तो इसके पास जीरो हो जाएगा, है ना? तो हम वो कंसिडरेशन ले रहे हैं कि somebody कैन हैव जीरो आल्सो। समझ रहे हो? किसी को जीरो चॉकलेट मिले, बाकी दोनों में बाकी 10 डिवाइड हो जाए, ऐसा हो सकता है ना? दैट्स अ पॉसिबिलिटी, दैट्स आल्सो एन इंटीग्रल सॉल्यूशन। जब मैं नॉन नेगेटिव की बात करूं, दोज नेगेटिव सॉल्यूशंस आर कंसीडर्ड, इंक्लूडेड इन दिस। ये जो 66 हमने निकाले हैं इसके अंदर इंक्लूडेड है वो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जब मैंने नॉन नेगेटिव की बात करी तो आई हैव कंसीडर्ड दैट। ओके, बट मान लो मेरा क्वेश्चन आए हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर? Positive integral solutions are there for this equation. How many positive integral solutions are there? अब देखो, अब तो मैं श्योर नहीं हूं ना कि जीरो किसी के पास नहीं आएगा। मान लो किसी के पास जीरो आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, उसको इंश्योर करने के लिए कि ऐसा ना हो, मैं क्या करता हूँ, सबको ऑलरेडी वन वन दे देता हूँ पहले से ही। सबको वन वन चॉकलेट तो दे ही दी, 10 चॉकलेट डिवाइड करनी है तीनों को, सच दैट एवरीवन गेट्स एटलीस्ट वन चॉकलेट। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है ना, in how many ways can 10 chocolates be divided among 3 people so that everyone gets at least one chocolate? सबको at least one तो मिले ही मिले। तो वन 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 पहले ही दे दी, तो बेसिकली अब वन 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 इनके पास ऑलरेडी है, ये आइडली बचा 7। समझ गए? क्योंकि 3 तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अब बाकी का काम तो सेम ही है जो हम पहले कर रहे थे। अब ये 7 चॉकलेट बची हुई 3 लोगों में डिवाइड करनी है, किसी को जीरो भी चले जाए कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उनके पास वन ऑलरेडी है। तो दैट गिव्स मी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। अंडरस्टूड? बिल्कुल ठीक अर्शदीप, बिल्कुल करेक्ट अनुज, करेक्ट आंसर। So how many solutions are there for this? 7 plus 3 minus 1, C3 minus 1. श्वेता प्लस 1 क्यों लिखा तुमने? Is it clear to all of you? अरे नहीं नहीं, वो अलग केस थोड़ी है श्वेता, वो दैट्स नॉट अ डिफरेंट केस, वो इन्हीं केसेस का पार्ट बन जाएगा ना बेसिकली। हमने तो सिर्फ वन वन चॉकलेट पहले से दे दी थी, दैट्स नॉट अ डिफरेंट केस, दैट्स अ मैंडेटरी केस। इफ यू रिमेंबर द रूल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एडिशन हम तब करते हैं जब और वाला केस होगी, या तो ये होगा या ये होगा, तब हम ऐड करते हैं। अब यहाँ ये करना है एंड देन ये करना है, तो मल्टीप्लाई होगा बेसिकली। समझ रहे हो? सो अगर तुम 1 ले रही हो तो 1 इंटू 9C2 होगा बेसिकली। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सबको क्लियर हो गया है इतना पार्ट? हम लोग बाइनोमियल करते करते पार्टीशनिंग पे पहुंच गए हैं, बट पार्टीशनिंग इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। ओके, तो पार्टीशनिंग बेस्ड कई सारे क्वेश्चन, अलजेब्रा के क्वेश्चन, इंटेग्रल सोल्यूशन वाले पार्टीशनिंग से, या फिर यही चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं बोल रहा हूँ, या बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे सारे क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन के पार्टीशनिंग से हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो पार्टीशनिंग तुम्हें बाइनोमियल में भी हेल्प करती है। दैट्स व्हाई when I discussed how many terms are there in a binomial expansion, तो n plus r minus 1 cr minus 1, this is the number of terms in a binomial expansion. Is it clear to all of you? सबको क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो एक बाइनोमियल का क्वेश्चन एक और करते हैं जो थोड़ा चैलेंजिंग है मल्टीनोमियल्स का। बाकी अदरवाइज आर कॉन्सेप्ट्स आर डन, फिनिश्ड, जितना हमने अब तक किया है। एक क्वेश्चन और करते हैं। आई हैव टेकन इट अप फ्रॉम दिस वाज इन जेई एग्जाम,
बट चलो हम करके देख लेते हैं एक बार। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बट एक समझने की बात है बस। सो 1 + x² - x³ रेज़्ड टू पावर 8। इसमें क्वेश्चन है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़्ड टू पावर 10। ठीक है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़्ड टू पावर 10। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए लेट मी हेल्प यू आउट विद दिस क्वेश्चन फर्स्ट। एक बार मैं करा देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन और दे दूंगा, तुम ट्राई कर लेना ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, सो व्हेन वी आर डूइंग एक्सपेंशन, देखो मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़्ड टू पावर 10 चाहिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ, सॉरी टोटल पावर 8 दिख रही है, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कुछ a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल होना चाहिए यहाँ पे, इंटू 1 की पावर a होगी, इंटू x² की पावर b होगी, इंटू -x³ की पावर c होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना क्लियर है ना सबको? मेरे को ये पता है कि a + b + c जो है वो 8 बनना चाहिए। ये सबको समझ आ रहा है ना? ये किसने आंसर दिया? 420। नो, नॉट द करेक्ट आंसर, आई टेल यू व्हाई। 420 एक स्टेप है बीच में, बट दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। किसने लिखा है? मेरे को नाम नहीं दिख रहा तुम्हारा। जस्ट सी, अनुज, अनुज ने लिखा है। ओके, कमिंग बैक टू दिस, तो क्या होगा अब? a फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, फिर से वही a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल, इनटू, देखो 1/8 डजंट मैटर, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे अब देखो माइनस आगे लग गया, माइनस आगे लगने से क्या होता है? माइनस के ऊपर c पावर है, अगर c इवन पावर होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, c ऑड पावर होगी तो ये नेगेटिव रह जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ -1 अलग कर लेता हूँ, -1 इसका c अलग कर लेता हूँ। ये समझ रहे हो बात? -1 इसका c क्यों किया? बिकॉज माइनस साइन विल बी डिपेंडेंट ऑन द पावर ऑफ c। इससे क्या होगा मेरे पास? ये आगे जो रह जाएगा वो रह जाएगा x⁻²b इंटू x⁻3c, यही रह जाएगा सिर्फ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ आ रही है ये चीज? मैंने माइनस क्यों अलग, इसका माइनस अलग निकाल लिया मैंने पावर c लेके, -1 कॉमन ले लिया ना, -1c कॉमन ले लिया। इसका मतलब c मेरा जो है वो डिसाइड करेगा वेदर माय कोएफिशिएंट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना पार्ट किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ये 1/8 डजंट मैटर बिकॉज ये 1 ही बनने वाला है, इसलिए मैंने आगे लिखा नहीं इसमें। ठीक है, आगे करें, अगर समझ आ गया तो प्लीज लेट मी नो। ओके, राइट, लेट्स मूव ऑन नाउ। सो अगेन फर्दर इसको मैं लिख सकता हूँ, ये तो -1/c ही है, x⁻²b + 3c। ओके, बाय रूल ऑफ इंडिसेस 2b + 3c बन गया ये। एंड मुझे ये पता है 2b + 3c मेरे को क्या चाहिए? 2b + 3c क्या चाहिए? x की पावर क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या चाहिए? फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़्ड टू पावर 10। तो 2b + 3c मेरे को 10 चाहिए, बट कंसिडरिंग दिस फैक्ट दैट a + b + c शुड बी 8, ये याद रखना है, ये तो मैंडेटरी कंडीशन है ना, a + b + c शुड बी 8। ओके, तो देखते हैं फिर, ये इसके वैल्यूज डालना शुरू करते हैं, साथ में एक ही वैल्यू लिखते रहेंगे साथ में, ठीक है ना? अच्छा, b को अगर b को 1 ले लेता हूँ तो c क्या आ जाएगा? 2b + 3c 10 है, b को 1 ले लेता हूँ, c क्या आ जाएगा? 8/3। नॉट पॉसिबल, क्योंकि दे शुड बी इंटीजर्स, ए बी सी इंटीजर चाहिए तीनों, तो नॉट पॉसिबल। 8/3 आ रहा है, नॉट पॉसिबल, इसको हटा दो। अच्छा, b को 2 ले लेते हैं तो c क्या आ जाएगा? इंटीग्रल सोल्यूशन ढूंढने हैं बस, आराम से ढूंढ लेते हैं।
C2 आ जाएगा, करेक्ट, दिस वर्क्स। ठीक है, अब BC2 आ गए, तो A कितना आ जाएगा फिर, वो भी लिखते जाओ साथ में, 4। ठीक है, चलो अगला करते हैं, ये वर्क करेगा। अगला अगर मैं 3 रख लेता हूँ तो बात बनेगी C के लिए, 3 रखता हूँ तो C के लिए बात बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि C बन जाएगा मेरा 6, 10 माइनस 6, 4/3। 4/3 बात नहीं बनेगी, छोड़ दो इसको। 4 डालेंगे तो ये 2/3 बन जाएगा, ये भी बात नहीं बनेगी, इसको भी छोड़ दो, है ना। अगर इसको 5 रखेंगे तो C 0 हो जाएगा, हाँ 0 0 0 हो जाएगा, 0 वर्क्स। C तुम्हारा B 5 है, C 0 है, तो A कितना कितना होना चाहिए फिर, 3 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, क्लियर है। तो अब आगे 6 डालेंगे अगर, तो 6 टू द 12, ये 10 को एक्सीड कर गया, तो आगे कोई वैल्यूज डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि C नेगेटिव हो जाएगा, वो मेरे को चाहिए नहीं, समझ रहे हो, आगे कोई और वैल्यूज डालने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर टिल नाउ। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, A4 B2 C2, A3 B5 C0। मतलब मेरे पास x रेज टू पावर 10 वाली दो टर्म्स बनेंगी, जिनके जिनके आगे कॉफिशिएंट क्या होने वाले हैं, जिनके कॉफिशिएंट होने वाले हैं 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय A फैक्टोरियल B फैक्टोरियल C फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और एक दूसरी टर्म होगी जिसमें कॉफिशिएंट होगा 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। ओके, जरा ये निकालो दोनों वैल्यूज, बताओ कितना आएगा। अच्छा, एक चीज को और ध्यान रखना, देखो C दोनों केसेस में 2 एंड 0 आ रहा है ना, C 2 एंड 0 आ रहा है, और मैंने बोला था कि इसका साइन जो है वो डिपेंड करेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, C के साइन पे डिपेंड करेगा कि आगे माइनस नेगेटिव आने वाला है या पॉजिटिव आने वाला है। तो C का दोनों केसेस में 0 या 2 ही आ रही है, तो दिस इज गोना बी पॉजिटिव ओनली। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 420, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 56, है ना, 420 और 56। तो एक टर्म आएगी 420 एक्स रेस्ट पर 10, एक 56 एक्स रेस्ट पर 10, बाद में ऐड हो जाएंगी आपस में, तो टोटल कोफिशिएंट बन जाएगा 476। Are you getting this? समझ आया ये। समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि मेरी टर्म्स तो ये बनने वाली है ना, अगर तुम टर्म्स को देखो, हाँ ऐड क्यों किया मैं बता रहा हूँ, टर्म्स को देखो, तो ये मेरी टर्म बनती है बेसिकली, मैं लिख देता हूँ इसको, 8 फैक्टोरियल बाय A फैक्टोरियल B फैक्टोरियल C फैक्टोरियल इंटू -1 रेस्ट पर C इंटू x रेस्ट पर 2b प्लस 3c। मेरे को ये पूछा था कि x रेस्ट पर 10 कॉफिशिएंट वाली, सॉरी x रेस्ट पर 10 का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो मेरे को यहाँ दिख रहा है कि 2b प्लस 3c 10 कब बन रहा है, एक किस केस में बन रहा है, किस केस में बन रहा है, तो एक टर्म बनेगी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू -1 रेस्ट पर 2 एक्स रेज टू पावर 2b प्लस 3c 10 बनता है, मेरे को ऑलरेडी पता है। ऐसे एक और टर्म आएगी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब मेरे पास वैल्यूज क्या है 3 5 एंड 0, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू -1 रेज टू पावर 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 10। ठीक है, ये दो टर्म्स आने वाली है ना, तो सारी टर्म्स आपस में ऐड ही होती है, समेशन, जब मल्टीनोमियल एक्सपेंशन करते हो सारी टर्म्स का समेशन होता है ना, तो ये तुम्हारी टर्म बन गई 420 एक्स रेज पर 10, ये टर्म तुम्हारी बन गई 56 एक्स रेज पर 10, जब ऐड होंगी तो 476 रेस्ट पर, सॉरी 476 इंटू एक्स पर 10 बन जाएगा ना, दैट्स गोना बी योर आंसर। इज इट क्लियर। सबको क्लियर हो गया ये।
ठीक है, इसका क्वेश्चन करना चाहते हो और एक? You want to do one more question or you're done with it? करना है क्वेश्चन तो लिख लो फटाफट एक। अच्छा, डन वाले भी आ गए। नो नो क्वेश्चन। कर लो एक क्वेश्चन, जस्ट वन क्वेश्चन। रेस्ट बार 5 है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर 4 बताओ। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर 4 बताओ। अच्छा, टायर्ड ऑलरेडी? बस एक क्वेश्चन श्वेता, दैट्स इट, लास्ट क्वेश्चन। एब्सोल्युटली करेक्ट अनुज, अनुज का करेक्ट आंसर है, जेसिका रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर अर्शदीप, ईशा, अभया, वेरी गुड। थोड़ी सी गलती हो गई, श्वेता, सृष्टि। करेक्ट आंसर संचित, करेक्ट आंसर प्रणव। मान्या, कुछ मिस्टेक किया तुमने, वेरीफाई योर मिस्टेक। प्रबलीन, बिल्कुल ही गलत हो गया, ये बहुत बड़ा कर दिया तुमने कुछ। जेसिका रॉन्ग, कुछ मिस्टेक किया है। ओके, सो ऊपर 5 है, तो टर्म इज गोना बी 5 फैक्टोरियल बाय a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल, वी नो दैट ऑलरेडी। ओके, into 1 की पावर a into minus x की पावर b into x, sorry, x square की पावर c, and I already know that a plus b plus c
should be 5. इसको मुझे दिमाग में रखना है, ठीक है। So when I just open it, ये 1 is for a doesn't mean anything, तो इसको नहीं यूज करते। ये -1 की पावर b है, तो -1 की पावर b वुड डिसाइड दी साइन, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ओके, इंटू एक्स रेस टू पावर b है यहाँ पे, यहाँ 2c है, एक्स रेस पावर b प्लस 2c हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को पता है का उन्होंने पूछा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस पावर 4, तो b प्लस 2c शुड बी 4, and you also need to keep in mind that a plus b plus c is gonna be 5. okay, तो इसके पेयर्स बनाने हैं मेरे को। कौन कौन से पेयर्स काम आएंगे? बी सी यूज करते हैं b प्लस 2c के लिए, ये बाद में देखा जाएगा साथ साथ। अच्छा, b प्लस 2c इज इक्वल टू 4 है। इफ यू पुट b टू बी 0, b 0 डाल देते हो तो c कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, राइट। और टोटल 5 चाहिए था, c 0 है, सॉरी b 0 है, c 2 है, तो a कितना हो जाएगा? 3। ओके, आगे और वैल्यू 1 डालेंगे, अगर b को 1 डालेंगे, 4 - 1 3 हो गया, 2c इज इक्वल टू 3, इंटीजर नहीं रहेगा तो 1 नहीं डाल सकते। b को 2 डालेंगे अगर, इफ आई पुट b टू बी 2, तो 2 प्लस 2c इज इक्वल टू 4, तो c की वैल्यू 1 हो गई। अब b 2 हो गया, c 1 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, तो a शुड बी 2। अंडरस्टूड? अगली वैल्यू 3, अगर b को 3 डालता हूँ तो 3 प्लस 2c इज इक्वल टू 4, ये भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं देगा, 2c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, c इज इक्वल टू 1/2, इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी, तो 3 नहीं आएगा यहाँ पे। अगला 4 डाल लेते हैं, तो b को 4 डालिए तो c 0 हो जाएगा, b को 4 डाल दिया तो c 0 हो जाएगा। और अगर c 0 हो गया तो ये a प्लस b प्लस c, b प्लस c 4 प्लस 0 4 है, a 1 हो जाएगा। ठीक है, हो गए सारे वैल्यूज। b को आगे तो मैं ले नहीं सकता कुछ, क्योंकि b प्लस 2c 4 ही था मेरा। ठीक है, ये 3 वैल्यूज बनते हैं। तो एक अब b के साइन पे डिपेंड करेगा कि उसका साइन नेगेटिव होना है या पॉजिटिव होना है। ऑड होता तो नेगेटिव होता, लेकिन सारे तीनों इवन वैल्यूज हैं b के लिए, तो पॉजिटिव ही आएंगे सारे कोएफिशिएंट। तो पहला कोएफिशिएंट तुम्हारा क्या है? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। दूसरा क्या बनेगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और तीसरा क्या बनेगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। ये आपस में सारे ऐड होंगे क्योंकि सबके सामने पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, क्योंकि b की पावर इवन है, क्योंकि b की पावर ने डिसाइड करना था ना कि साइन आगे कौन सा लगेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। ओके, तो बस इनको ऐड कर लो। देखो ये कितना बनता है? 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कितना बना? 5 इंटू 4 बाय 2 इंटू 1 10 बना। ठीक है, ये कितना बना? 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 बाय 2 इंटू 1 30 बन गया ये। और ये कितना बना? 5 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो सीधा 5 ही बना ये। इन सबको ऐड करना है आपस में, तो 45 शुड बी दी सम ऑफ दी कोएफिशिएंट्स। समझ आया ये? 45 हो गया सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is it clear to all of you? सबको समझ आ गया? With that, let me just summarize something. जो जो तुम अब तक पढ़ते आ रहे हो उनमें से हमने कुछ फॉर्मूला किए हैं, पता नहीं तुम फॉर्मूला कैसे नोट डाउन करते हो नहीं करते हो। आज एक फॉर्मूला तुम्हारा हुआ, अगर x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे चलते चलते तुम्हारा r टर्म्स तक टर्म्स होंगी, इज इक्वल टू n आ रहा है, और पूछा हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर, हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर। उसका फॉर्मूला क्या है? n प्लस r माइनस वन सी r माइनस वन। ठीक है, याद है ना सबको? आज हमने डिस्कस किया ये। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था, मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इज इक्वल टू n हो तो कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस होते हैं? क्योंकि सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले कुछ याद होंगे तो मेरा टाइम सेव होगा क्वेश्चन पेपर्स में। कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन होते हैं? जस्ट समबडी रिमेंबर हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर? अरे n है अनुज, n लिखा है यहाँ पे, 4 नहीं लिखा। वो तो 16 आए थे उस केस में जो मैंने क्वेश्चन कराया था, बट मैंने एक बताया था इसका शॉर्टकट। नो, भूल गए हो तुम। 4n भूल गए, मैंने बताया था ये बना के
कि चारों लाइन पे सोल्यूशन बनेंगे, इसलिए इंटू 4 करते हैं हम लोग। यस 4n, ठीक है ना। जैसे जैसे कोई फॉर्मूले हम करते हैं ना, वो फॉर्मूले समराइज कर लोगे कहीं पे तो तुम्हें बाद में इजी रहेगा जब रिवीजन करनी है या टेस्ट दे रहे हो। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आया, मैंने बताया डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, ऐसे कर सकते हो। अब ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट कर सकते हो फॉर्मूला लगा के, तो ज्यादा थॉट प्रोसेस देने की जरूरत नहीं है इसको। ऐसे कुछ और फॉर्मूला भी होते हैं, आई एम श्योर तुम्हें क्वेश्चन आएंगे नहीं, बट आई पिक्ड अप सम फॉर्मूला जो शायद अगर कभी मान लो आ गया तो यू कैन स्टिल सॉल्व इट। 4n² + 2 इंटीग्रल सॉल्यूशंस होते हैं इसके, ठीक है ना। although you don't need to get into the third dimension, but you can remember this formula। ऐसी एक और फॉर्मूला कई बार हम करते हैं। अगर मान लो इसमें इंटीग्रल सॉल्यूशंस का फॉर्मूला है, ये इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे, मैं समरी दे रहा हूँ, कुछ समरी हमने जितना किया है उसमें से कुछ समरी दे रहा हूँ, ये नहीं किया हुआ पर ये याद रख लो। a/x + b/y = 1/n अगर इक्वेशन इस फॉर्म की होगी और तुम्हें बोलूं कि इसके कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे याद रखना, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ a इंटू बी इंटू एन स्क्वायर। देखो a है, ये b है, इंटू एन स्क्वायर, ठीक है ना। ये कुछ फॉर्मूला है, डायरेक्ट हेल्प करते हैं, पिक्ड अप फ्रॉम जेई के टाइम पे बताते हैं। ठीक है, जस्ट राइट डाउन दिस फॉर्मूला। इसका एग्जांपल क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, 4/x + 5/y = 1/20। तो बताओ कि इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। सीधा तुम ये फॉर्मूला के अंदर डालो एंड यू बी एबल टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, अगर इंटीग्रल सॉल्यूशंस बोला है, अगर पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बजाय इंटीग्रल सॉल्यूशंस बोला है, सिर्फ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो ये होने वाला है 2 इंटू यही ऊपर जो लिखा है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ a इंटू बी इंटू एन स्क्वायर -1। ओके, समझ गए ये। तो ये बस लिख लो कुछ फॉर्मूलाज, ये काम के फॉर्मूलाज हैं, माइट बी हेल्पफुल, मे बी आ जाए कभी क्वेश्चन तो हेल्पफुल होंगे, ठीक है। चलो, सो विल रैप इट अप नाउ। आई होप बाइनोमियल, अब आज एक टॉपिक नहीं हुआ, वी डिड नॉट जस्ट डू बाइनोमियल, वी डिड पार्टीशनिंग आल्सो। आई होप बाइनोमियल एंड पार्टीशनिंग बोथ आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। पार्टीशनिंग प्लस परमुटेशन का भी एक पार्ट हो गया, जैसे कभी क्वेश्चन में बोला वही 10 चॉकलेट 3 लोगों को डिवाइड करने हैं, पार्टीशनिंग हो गया, कैसे करोगे। अच्छा, इसमें कंडीशन में ये भी दे सकता हूँ कि 3 लोग 10 चॉकलेट 3 लोगों को डिवाइड करने हैं, 3 पीपल, सो दैट एवरीवन गेट्स एटलीस्ट 2 चॉकलेट्स, सबको 2 तो मिले ही मिले। तो हम क्या करेंगे, अगर 3 लोग हैं 10 चॉकलेट मिलने चाहिए, सबको 2 तो मिले ही मिले, तो सबको पहले ही 2-2 दे दो, ठीक है ना। जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था 1-1 दे दो, तो a + b + c तुम्हारा 2-2 6 दे के 4 बचेगा। तो बाकी का तुम्हें करना आता है, सॉल्व कैसे करते हैं। ये हो जाएगा 4 + 3 - 1 c 3 - 1। एब्सोल्युटली करेक्ट अनुज, अंडरस्टूड नाउ, गुड, वेरी गुड, समझ गए। तो पार्टीशनिंग भी हमारा हो गया। क्लियर विद दिस, यस करेक्ट आंसर अनुज, संचित, अर्शदीप, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, दैट्स पार्टीशनिंग। क्लियर विद दिस, चलो, सो विल रैप इट अप नाउ, ठीक है। ऐसे ही कीप टेकिंग दी टेस्ट, जो मैं तुम्हें टेस्ट भेज रहा हूँ, मैं आज भी एक टेस्ट भेजूंगा, फिनिश अ टेस्ट, एंड बाकी नेक्स्ट वीक में भी आई विल पिक अप फ्यू टॉपिक्स, ऐसे जो एडिशनल टॉपिक्स हैं जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे अभी लॉगरिथम हमने पीछे किया था या बाइनोमियल हमने किया है, ठीक है ना, मैट्रिसेस करेंगे, तो आई विल पिक अप रैंडम जो टॉपिक्स जिनका एक आध दो क्वेश्चन कई बार आते हैं, वो टॉपिक पिकअप करेंगे एंड विल डू इट, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीक में भी तुम्हारे ऐसे 2-3 क्लासेस रखूंगा, ठीक है।
चलो, I'll see you guys then. तो टेस्ट भेज रहा हूँ, टेस्ट करना, ठीक है? थोड़ी देर में टेस्ट भेजूंगा, टेस्ट करना। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू ऑल, बाय बाय। बाय बाय ईशा, बाय प्रिया, बाय प्रणव, बाय मन्या, श्वेता, प्रबलीन, जेसिका।